Assalamu alaikum, dear students. I hope that you all will be fine. Today we are going to start the first lesson of your English textbook, that is a poem, and the title of the poem is Mother to Son. It's on book page number 2. Objectives of the lesson are to understand and enjoy the poem, to read the poem with proper intonation and rhythm, to talk about hardships in life. About the poem is a positive message of a mother speaking to her son with words of encouragement about overcoming difficulties. One must possess courage to move forward in life in spite of the difficulties that might come his way. Open your textbook, page number 2. Mother to Son by Langston Hughes. Well, son, I'll tell you, life for me ain't been no crystal stair. It's had tacks in it and splinters and boards torn up and places with no carpet on the floor bare. But all the time I's been climbing on and reaching landings and turning corners and sometimes going in the dark where there ain't been no light. So, boy, don't you turn back. Don't you sit down on the steps, 'cause you find it's kinder hard. Don't you fall now, for I's still going, honey. I's still climbing, and life for me ain't been no crystal stair. Stanza-wise explanation of the poem. The first two stanza. Well, son, I'll tell you, life for me ain't been no crystal stair. It's had tacks in it and splinters and boards torn up and places with no carpet on the floor bare. The poem starts with the words of a mother speaking to her son. She tells her son about experiences of her life journey that is for her has never been easy. Crystal stair means a high quality and smooth glass stair. It refers to the upward journey of life. The journey of her life has not been smooth and clear. The words and phrases used in the second stanza, like tacks, splinters, board torn up, floor bare, represent the difficulties and hurdles that she faces in her life. All such things can harm and may cause difficulty in movement. No carpet on the floor bare refers to the poor living condition where someone does not even have the basic necessities of life. पोइम का आगाज़ एक माँ के अल्फाज के साथ होता है जो कि अपने बेटे को अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली दुश्वारियों के बारे में बताती हैं। उनके मुताबिक ज़िंदगी जो है एक मुसलसल सफ़र का नाम है और वो सफ़र उनके लिए कभी भी आसान नहीं रहा। ठीक है, स्टेयर्स का मतलब सीढ़ियाँ, और आप सब जानते हैं सीढ़ियाँ किस काम आती हैं। सीढ़ियाँ ऊंची जगह तक पहुंचने के काम आती हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाने के काम आती हैं। अगर तो सीढ़ियाँ स्मूथ होंगी, क्लियर होंगी, ठीक है, साफ शफाफ होंगी, तो आपके लिए ऊपर चढ़ना उतना ही आसान होगा। अगर सीढ़ियाँ टूटी फूटी होंगी तो जाहिर सी बात है उन पर चढ़ के ऊपर जाना आपके लिए उतना ही मुश्किल होगा। इसी तरह ज़िंदगी का सफ़र है। अगर आपकी ज़िंदगी में किसी किस्म की कोई दुश्वारी और मुश्किलात किसी मरहले में नहीं आती तो आप बड़े ही आराम से ज़िंदगी में आगे की तरफ बढ़ते हो। लेकिन अगर आपके रास्ते में मुश्किलात और रुकावटें आ जाती हैं तब क्या होता है, तब इंसान के लिए आगे की तरफ सफ़र करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे पोइट ने कुछ वर्ड्स का यूज़ किया है जो कि ज़िंदगी की मुश्किलात को रिप्रेजेंट करती हैं। टैक्स जिसका मतलब है छोटी कील, ठीक है। स्प्लिंटर कहा जाता है लकड़ी या फिर शीशे के टूटे हुए छोटे टुकड़ों को। अब ये अल्फाज जाहिर सी बात है क्या जाहिर करती हैं, अगर ये चीज़ें किसी के रास्ते में होंगी और किसी को इनसे चोट लगेगी तो वो आगे बढ़ने में उनको उसी तरह दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अगर चोट लगेगी तो जाहिर सी बात है आपको चलने फिरने में मुश्किल होती है। तो अगर आपके लिए आगे कोई रुकावट होगी तो इसी तरह ज़िंदगी में भी आगे बढ़ना आपके लिए उसी तरह मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बेयर का मतलब होता है अनकवर्ड, ठीक है, जो कि कंफर्टेबल ना हो। यहाँ पे इसका मतलब यही है कि बाज़ दफ़ा ज़िंदगी में ऐसे मरहले भी आते हैं कि इंसान जो है वो बुनियादी ज़रूरियात के लिए भी तरस जाता है। ठीक है, और उसको जो है उन ज़रूरियात के बग़ैर अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है जो कि आसान नहीं है। ये तमाम बातें यहाँ पे की गई हैं जो कि एक माँ नहीं बल्कि ये हम सब अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एक माँ ही की ज़िंदगी दुश्वार नहीं होती, हर इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात होती हैं। वर्ड्स टू नो, IL इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ I will, ain't means has not,
tacks, small nails, splinters, small sharp broken wood, crystal, high quality clear glass. Stanza 3. But all the time I've been a climbing on and reaching landings and turning corners and sometimes going in the dark where there ain't been no light. Mother tells her son that despite all the difficulties that she faced during her journey of life, she has been climbing up this staircase of life. Here, turning corners in the dark refers to the fears and doubts that one has during the times of uncertainty. Remember that there is a light after darkness. In the darkness of fear, one should have the light of hope that will clear the path leads towards a better life. अब यहाँ पे वो माँ ये सोच कर कि कहीं उसकी बताई हुई बात से बच्चा खौफज़दा ना हो जाए, वो क्या कहती है कि इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं रुक गई हूँ. मैंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र जारी रखा. बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि क्यों ना यहाँ पे रुक जाऊँ, या कभी थकन महसूस हुई तो क्यों ना यहाँ पे थोड़ा आराम कर लूँ. ठीक है, ऐसा कभी नहीं हुआ, बल्कि उन तमाम हालात के बावजूद मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ती रही, कोशिश करती रही. ठीक है, इंसान जब किसी चीज़ की तरफ पहला कदम उठाता है तो इंसान के जहन को, उसके दिल को मुख्तलिफ़ किस्म के खौफ और अंदेशे घेर लेते हैं. ठीक है, वो सोचता है कि अगर ने ये कदम उठाया तो हो सकता है कि मुझे नाकामी का सामना करना पड़े. ठीक है, तो इस खौफ से और डर से वो कदम उठाने में झिझक महसूस करता है. लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि याद रखना चाहिए कि हर तारीकी के बाद एक रोशन सुबह आपकी मुंतज़िर होती है, और वो रोशन सुबह आपके अंदर मौजूद उम्मीद की है. ठीक है, अगर आपके अंदर उम्मीद ज़िंदा है तो आप किसी भी खौफ का मुकाबला करके आगे ज़िंदगी में बढ़ सकते हैं. Words to know: eyes, I have, a climbing, climbing, reaching, landing, going for going, and is here for has not. Stanza 4 and 5. So boy, don't you turn back. Don't you sit down on the steps, 'cause you find it's kinder hard. Don't you fall now, for I still going, honey. I still climbing, and life for me ain't been no crystal stair. The mother is advising her son not to lose hope and courage when he has to face a difficult time. Not to stop struggling when he may find it difficult to take another step towards a better life. Fall now may also indicate being misled. The mother advised her son not to be misled and choose wrong path to achieve something in life. The mother encourages her son by telling him again that despite all the sufferings and hard times, she still strive for a better life. यहाँ पे मदर माँ अपने बेटे को जो है वो मोटिवेट करते हुए कहती हैं कि कभी भी ऐसा ना हो कि आप किसी मुश्किल से खौफज़दा होकर या थक हार कर बैठ जाएं और आगे ना बढ़ें. ऐसा अपनी ज़िंदगी में आपने कभी नहीं सोचना, बल्कि आगे बढ़ते रहना है. ठीक है, बाज़ दफ़ा इंसान की ज़िंदगी में कोई इतनी बड़ी मुश्किल आ जाती है कि इंसान जो है वो बिल्कुल हिम्मत हार जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है, उसके इरादे कमज़ोर पड़ जाते हैं और वो सोचता है पीछे हटने का या वहीं पे रुक जाने का. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए. हमेशा याद रखें कि ज़िंदगी जो है वो मरते दम तक इंसान की ज़िंदगी मुश्किलात और मसाइब के साथ जुड़ी रहती हैं. तो करना क्या चाहिए कि बहुत ही हिम्मत और हौसले के साथ उन मुश्किलात का मुकाबला करना चाहिए. यहाँ पे एक और बात भी वो अपने बेटे से कहती हैं कि डोंट फॉल नाउ, या जिसका मतलब है मिसलेड. ऐसा ना हो कि कभी किसी काम को या अपने मकसद को हासिल करने के लिए आप किसी गलत रास्ते का इंतखाब करें. ठीक है, लोगों की बातों में आकर या शॉर्टकट्स ढूंढकर आप सोचें कि क्यों ना किसी भी मकसद को किसी दूसरे तरीके से हासिल कर लिया जाए जो कि ठीक ना हो. ऐसा नहीं होना चाहिए. और वो अगेन अपने बेटे को मोटिवेट करते हुए कहती हैं कि मैं जो है अभी भी अपनी ज़िंदगी के सफ़र में हूँ, मैं अभी भी आगे की तरफ बढ़ रही हूँ, मैं अभी भी नहीं रुकी और मैं अब भी अपनी बेहतर ज़िंदगी के लिए जद्दोजहद कर रही हूँ. वर्ड्स टू नो: आइज़ फॉर आई एम, सेट डाउन मीन्स टू स्टॉप और रेस्ट.
اوکے اسٹوڈینٹس، تھیم آف دا پوئم آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو کلیئر ہوگا. تمام ہر ایک اسٹینزا میں ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے، وہ ہے مشکلات کا مقابلہ کرنا، امید باندھے رکھنا، ٹھیک ہے، اور ہر مشکل کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا. تھیم آف دا پوئم از کریج، ہوپ، اسٹرینتھ، فیتھ اینڈ ڈٹرمینیشن. There will be obstacles, there will be doubters, there will be mistakes, but with hard work there are no limits. I hope students کے آج کا لیکچر آپ لوگ کو کلیئر ہوگا. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.